Good morning, students. As you seen that example, and then we have to say that in this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increasingly complex way. The production process is divided into small parts and is spread out across the globe. In the above example, China provides an advantage of being a cheap manufacturing location. Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to market in the US and Europe. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production. It also has educated English speaking youth who can provide customer care services. And all this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNC. The advantage of spreading out production across the borders to the multinational can be truly immense. नॉडिया जो अभी आप लोग ने एग्ज़ाम्पल देखा उस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी होती है, ठीक है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो केवल अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे सेल ही नहीं करती है बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को तैयार भी करती है, ठीक है। रिजल्ट जहाँ पर उन्हें लगता है कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना या प्रोड्यूस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो वो उन्हें क्या करती है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और पूरे विश्व में उसको फैला देती है। जैसे कि एग्जांपल इसमें चाइना में दिया गया कि चाइना क्या करता है कि जो है चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन प्रोवाइड करता है, और मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है वो क्लोजनेस ऑफ मार्केट के लिए यूज़फुल है। इंडिया जो है वो हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स के लिए जो कि अच्छी तरह से टेक्निक को समझ सके और प्रोडक्शन में उनका प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके अलावा जो है यहाँ पर एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है जो कि कस्टमर केयर को अच्छी तरह से अपनी बात को समझा सके। इस तरह से ओवरऑल मिला के एंड प्रॉब्ली कैन मीन्स 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर MNC। इस तरह से कहा जा सकता है कि नियर अबाउट 50 to 60% जो मल्टीनेशनल कंपनियां रहती हैं वो सभी चीज़ों में अपनी बचत कर लेती हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर अपने सीमाओं के पार जाके मल्टीनेशनल प्रोडक्शन का जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है, अगर उसको स्प्रेड किया जाता है तो आने वाले फ्यूचर में उस व्यक्ति को, उस कंपनी को असीमित लाभ होता है, ठीक है, जिसका कोई अनलिमिटेड एडवांटेज देखने को मिलते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इट मीन्स विश्व भर के उत्पाद को एक दूसरे से जोड़ना। In generally, MNC set up production where it is close to market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factories of production is assured. In addition, MNC might look for government policies that look after their interest. You will read more about the policies later in the chapter. Having assured themselves of this condition, MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as the land, building, machine and other equipment is called investment. Investment made by MNC is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. At time, MNC set up production jointly with some of the location companies of these countries. The benefit to the local companies of such joint production is twofold. First, MNC can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. Second, MNC might bring with them the last technology for production.
So MNC enjoy enormous wealth, have tremendous powers to determine price, quality, delivery of goods and labor condition for their distance production. Financially, they are so strong that they buy local companies and after that can expand their businesses. Take an example of Park Foods, an Indian company which had a very good marketing network and enjoy well reputed brand. It has been bought by an American MNC, Cargill Foods. Park Foods had oil refineries whose control has gone into the hands of Cargill, which is now two largest producer of edible oil in India. MNC control production in another way also. They place other orders to small industries engaged in also in production around the world in different items such as the garments, sports items, footwear, toys, spare parts. These productions are owned by MNCs under their own brand name to the customer. Now listen. जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं बेटा, वो उसी जगह पे, उसी स्थान पे अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाती हैं जहाँ पर मार्केट की अवेलेबिलिटी हो. क्लास में याद रखना कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर मार्केट की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पर जो है क्या होता है, किसी भी कंपनी को या किसी भी जैसे मान लो कि अगर कोई गुड्स तैयार कर रहे हो आप, आपके घर में ग्रेन भी तैयार हो रहा है तो आप उसको ले जाते हो, तो ऐसे ग्रेन को प्रोड्यूस करते हो जिसको हम नियर बाय मार्केट में ले जाके जिसकी डिमांड हो और हम उसे सेल कर सके. ठीक उसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो डिमांड को देखते हुए ऐसी जगह पे कंपनी लगाती हैं जहां पर उसका मार्केट बहुत नज़दीक हो और कम लागत में, कम पैसे में उन्हें जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर्स जो है अवेलेबल हो. जहाँ पर जो प्रोडक्शन के और भी बहुत सारे फैक्टर्स से उनकी उपलब्धता, उनकी अवेलेबिलिटी निश्चित हो और उसके साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे भी नज़र रखती हैं, जो उनके वेलफेयर के बारे में सोचती हैं और उनका काम करती हैं. इन सिचुएशन को सिक्योर करने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्शन के लिए जो जैसे मान लो अब हमें फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए हमें ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, फैक्ट्रीज भी बनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स भी खरीदना पड़ेगा. तो ये सारे जो पैसा वो इन्वेस्ट करती है उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी जब अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च करती है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपने फॉरेन करेंसी को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती हैं. और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है, चाहे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, वो ये इस उम्मीद से किया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें उसका लाभ होगा. जैसे आज आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा इंसान बनेगा. ठीक है, ठीक उसी तरह कोई भी कंपनी जब लगाई जाती है तो उससे पहले ये सोचा जाता है कि हमें जो है आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. कभी कभी जो है जो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो क्या करती हैं कि कई सारे कंट्रीज़ में जाके और अपनी अपनी कंपनी लगाती हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं. और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ लगाई है तो हमारे यहाँ के लोगों को भी काम मिल गया और उसके बाद हम उसके गुड्स को खरीद रहे हैं. तो इस तरह से हमें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है और लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन. सेकेंड, MNC माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. वो क्या करती है कि
जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उससे जो वहाँ की रीजनल कंपनीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्या तो फर्स्ट ये कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा निवेश करती हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करती हैं, और जो बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोडक्शन दे सके, बहुत तेज़ी से उत्पाद को बढ़ा सके, वैसे मशीनों को भी खरीदती है। और इसके अलावा दूसरा यह है कि बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो प्रोडक्शन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर आती है। फॉरेन से अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ आ रही है तो अपने साथ कोई न्यू टेक्नोलॉजी ज़रूर लेकर आती है, जिससे कि जो हमारे रीजनल जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट में आ गया है तो धीरे धीरे हम भी उसको खरीदेंगे, हम भी उन सारी टेक्नोलॉजी को जानेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। Now, but the most common route of MNC investment is to buying up local companies and then expand production. MNC with huge wealth can quite easily to do. So, to take an example, Cargill Foods of very large American MNC has bought over smaller Indian companies such as the Walk Foods, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वही सारी चीज़ें हैं। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाली की जो वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो वहाँ की जो रीजनल जो कंपनीज हैं उनको ख़रीद भी लेती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया, बट एक बार फिर से हिंदी में बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी है एक अमेरिका की कंपनी है जो कारगिल फूड्स तैयार करती है, और इंडियन जो है वो फरक फूड्स तैयार करती है। फरक फूड्स जो तैयार करती थी उस कंपनी को वो ख़रीद लेती है। फ़र्क फूड्स की जो कंपनी होती है वो बहुत सारे मतलब अपने जो कहा जाए अपने ब्रांचेस को पूरे कंट्री का पूरे बहुत सारे जगहों पे फैला चुकी रहती है, जहाँ पर उसकी ब्रांड्स जो है बहुत ही फेमस हो जाते हैं। और जो फ़र्क फूड्स है उसके लिए रिफाइनरी सेंटर्स भी रहते हैं, जिन पर अब पूरी तरह से किसका नियंत्रण हो गया है, जो अमेरिकन कंपनी कारगिल थी उसका वो उसके कैप्चर में आ जाती है। और अब कारगिल जो है वो 15 लाख पैकेट्स पर डे के जैसे पर डे प्रोडक्शन के कैपेसिटी के साथ इंडिया में जितने भी रिफाइनरी सेंटर्स हैं उनके सबसे बड़ी कंपनी बनके, मतलब सबसे तेज़ी से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली कंपनी बनके और सबके सामने आती है। अगर रियलिटी देखा जाए तो कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट होती है उनकी जो पूरे गवर्नमेंट की जो बजट होती है उसके कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। देखो ये तो बात अच्छी है कि चलो हमारे यहाँ, लेकिन ऐसी सारी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपनीज़ होती हैं उसके जो उनकी पावर के बारे में और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में हमें जो है ज़रूर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक अन्य तरीके से ही जितने भी प्रोडक्शन है होती है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है, उनको अपने अंडर में लेती है। वे जितने भी छोटे और जो स्मॉल और रीजनल प्रोड्यूसर्स होते हैं जितने भी छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको जो है प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का एक तरह से आदेश देती है। जैसे मान लो कि हमारे शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए, ठीक है, कपड़े हो गए, टॉयज़ हो गए, जिनका पूरे वर्ल्ड में एक बहुत लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो जितने भी छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इन प्रोडक्शंस को क्या करते हैं, इन प्रोडक्शंस की उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। और फिर जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि हमने गुड़ बनाया, ठीक है, और गुड़ बना के हमने क्या किया कि
उसको बाबा रामदेव को बेच दिया फॉर एग्जांपल दैट। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पतंजलि का ब्रांड लगा के और मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? ठीक इसी तरह तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है कि उनके ऊपर अपने ब्रांड का नाम चिपका देती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ले जाके और दूर दूर अपने सामान को, अपने जितने भी प्रोडक्शन है उनको बेचना शुरू कर देती हैं। और जब देखो ब्रांड, आज के लिए ब्रांड ऐसा शब्द है जिसके ऊपर लोग जो है क्या है कि पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ठीक है कि ब्रांड है तो बहुत अच्छा है, मतलब उसके ऊपर लोगो लग गया तो हाँ यानी कि ये ब्रांडेड है, अब हम इसको जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत ये हमारे लिए बेनिफिट है, इससे हमें बहुत मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है, यह सोच के हम जो है बहुत ज़्यादा पैसा भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कई प्रकार के जो है डिफरेंट टाइप के जो ट्रेड हैं उनको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और जितने भी इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज़ होती हैं वो किसी कंट्रीज़ में जाती हैं तो वहाँ के जो रीजनल कंपनीज़ होती हैं उनके साथ जो है एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाती हैं और उसके साथ जो है इंटरडिपेंडेंसी के साथ जो है जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो उनसे सामान खरीदती हैं। ठीक है, उनसे सामान खरीद ली, फिर अपना लोगो लगाया और फिर ले जाके वहाँ पर दूर देशों में यानी कि विदेशों में उसको भेज दिया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट हम देख सकते हैं कि दूर दूर जो स्थानों पर प्रोडक्शन इज दिस वाइडली डिस्प्रेड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंकिंग, दूर स्थानों पर फैला उत्पाद परस्पर संबंधित हो रहा है। ठीक है, okay dear, now next day we have to start our new topic.